Okay, good evening everyone. So in the previous class of your sample paper solution, so we have completed section A and section B of your sample paper 2. So today we are doing section C and section D, where it comprises section C comprises 6 question and the section D comprises 4 question. Each how many marks? 5 marks, whereas section C is a 3 marks. Clear? So here is our first question from section C. That is a question number 26 to 31. Each comprises of 3 marks question. So this is the first question, that in a class of 60 students, 25 students play cricket and 20 students play tennis, and 10 students play both the games. Find the number of students who play neither. That means दोनों play नहीं करता. So this type of question can be done with the help of the Venn diagram, clear, or with the help of your what normally formula also. So let's we do with the what वेन डायग्राम से करते चलो. हाँ, तो वेन डायग्राम से अगर करेंगे, सो विल मेक अ होल सेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर. एम आई क्लियर? चलो ये बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम. सो दिस इज योर वन सेट, दिस इज योर अनदर सेट. लेट्स यू कंसिडर दिस इज अ cricket and another one is what? Tennis. Chalo, tennis. So cricket is 25 student. This can be done is very easy way if you remember. So we'll use A, B and C notation over here. Clear? So we know where with the help of the Venn diagram, 25 students play cricket. So cricket means within the cricket circle you have a plus B values. So A plus B is 25. Am I clear? And the tennis, how many players are there? A tennis is B plus C. So tennis is inside of the B tennis circle. We have a B and C. So it is how many players? 20 players are there. And 10 students are there who play both the game. That means both the game means intersection, and intersection containing B is equals to 10. Am I clear up to here? Our total student is 30. First, I am finding how many students are there who is playing either cricket or your what? Tennis or both. Clear? And out of the total, we'll subtract them. So then we'll find out the who play neither one of the game. So this is, let's we consider a one equation. This is a two equation. Clear? And this is your थ्री इक्वेशन. एम आई क्लियर? चलो ये करते हैं हम लोग 1 2. इसका वैल्यू यहाँ डाल दो. सो फ्रॉम 1 वी कैन से दैट बी का वैल्यू 10 डालने से तो आपका आ जाएगा क्या? ए इज इक्वल्स टू 15. क्लियर? उसी तरह से अगर ये 10 वैल्यू यहाँ डालोगे, सो 10 प्लस सी इज इक्वल्स टू 20, तो सी का वैल्यू आ गया आपका 10. सो दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? सो ये हुआ हु प्ले क्रिकेट ओनली, हु प्ले टेनिस ओनली एंड हु प्ले बोथ. सो ए का वैल्यू आ गया आपका 15, बी आ गया आपका 10, सी भी आ गया आपका 10. सो टोटल हो गया 35 स्टूडेंट्स आर देयर who play any one of the game. Any doubt? 25 20 10 ना? ठीक है, बी 10 है. चलो 35 स्टूडेंट है. इज देयर इन डाउट? ओके, ये हुआ आपका चीज. अब नाउ हु प्ले नीदर ऑफ द गेम, दैट मीन्स कोई भी अगर गेम नहीं खेलने वाला, टोटल यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेगा. सो यूनिवर्सल सेट माइनस व्हाट? ए यूनियन बी, जो कुछ भी नहीं है. तो टोटल इज 60 माइनस 35, सो दैट इज योर 25. तो 25 स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ भी गेम नहीं खेलेगा. ये हुआ विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम. क्लियर? बट यू कैन डू दिस क्वेश्चन विथ अनदर वे ऑल्सो. पहले 1 मिनट देखते हैं क्या इसका फाइंडिंग है. जस्ट वेट. चलो सुना. अगर इसको अलग तरीका से, दैट मीन्स वाई आई एम यूजिंग दिस मैथड, बिकॉज दिस मैथड इज वेरी इजी एंड एज वेल एज यू कैन फाइंड एवरीथिंग. सपोज द क्वेश्चन से दैट how many students are there who play cricket only, then also you'll get that cricket only means a values. So a value भी आपका आ गया 15. who play tennis only, then also you'll get this one. clear? तो आप लोग ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं. otherwise you know very well another one with the formula method. clear? एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता होगा. दैट इज अ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये भी डायरेक्ट निकल देगा. क्लियर? सो व्हाट इज एन ए वैल्यू? नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट 25, दूसरा 20 और दूसरा 10. सो यू आर गेटिंग 35. सो व्हाट इज अ हु प्ले? कोई भी गेम नहीं खेलेगा, नाइदर क्रिकेट नॉर ए और बी माना क्रिकेट और टेनिस को. सो आपका होगा एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. सो वो हो गया आपका एन ऑफ यूनिवर्सल सेट minus n f a union b. n of universal set is 60 minus 35, then it is 25. So your wish
आइदर यू वांट टू यूज फॉर्मूला मेथड और यू वांट टू यूज दिस मेथड। बट दिस मेथड में क्या एडवांटेज है, कुछ भी पूछने से आपका निकलेगा, क्रिकेट ओनली वो भी निकलेगा, टेनिस ओनली वो भी निकलेगा, इसमें भी निकलेगा आपका। अगर क्रिकेट ओनली बोलता तो आपका होगा क्रिकेट ओनली, तो बी में कम्प्लीमेंट लगता है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें कम्प्लीमेंट नहीं है वो लिखो, माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये भी आ जाएगा। तो एन ए कितना था आपका 25, 25 माइनस 10 करने से 15, वो भी आ जाता। क्लियर। चलो इसका सेकंड और क्वेश्चन हम तो और भी कर दे रहे। ए बी सी आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट दिस इफ ए के पास 2 4 6 8 12 20 है और बी के पास 3 6 9 12 15 है और सी के पास 5 10 15 20 है एंड यूज दिस द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ड्रॉ द वेन डायग्राम शोइंग द रिलेशन ऑफ यू ए। अच्छा वेन डायग्राम शो करना है, रिलेशन 2 4 6। चलो अब तो ऐसा बनाना है, ये ऐसा हो आपका। चलो बड़ा होल नंबर बनाता है। क्लियर। चलो यहाँ पर ए 3 है ना, तो ए ये बनाता है, ये चलो बी बनाता है। क्लियर। और सी भी कुछ एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, चलो देखते हैं। 2 4 6 8 12 20, इज देयर एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी? यस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट। व्हाट इज अ कॉमन एलिमेंट? 12 इज अ कॉमन एलिमेंट। ओके नाउ इसमें और उसमें भी कॉमन एलिमेंट है, इसमें अच्छा तीनों में कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, तो आप लोग करते ऐसे करके एक और वेन डायग्राम, दैट इज दिस वन। सो ये मानते हैं चलो ए, ये मानते हैं बी, चलो ये मानते सी। एनी डाउट? लिसन केयरफुली नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट विद द वेन डायग्राम ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं एक बार अच्छा से। 2 4 6 8 12 एंड 20। उसके बाद देखो बी, लिसन केयरफुली के 3 6 9 12 and 15 dear, and then write down the c. C is your 5 10 15. Now just tell me, is there any element which is present in all the cases? Let's check it. यहाँ 5 है नहीं है, यहाँ 10 है नहीं है, 15 15 नहीं है, 20 20, दैट मीन्स दिस रिमेन वैकेंट, दिस रिमेन वैकेंट, ये नहीं होगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है आपका। क्लियर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो ये तीनों में एडजस्ट करेगा, तो आपके पास वेन डायग्राम ऐसा नहीं बन रहा है, याद करना। क्लियर। तीनों में जो कॉमन है वो नहीं बन रहा है। कुछ डाउट? इज देयर एनी डाउट? तो देर इज नॉन ऑफ द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो आपके पास ऐसा हो रहा है। चलो ऐसे करके बनाना है तब तो सुने ध्यान ला गया, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना था वेन डायग्राम से। तीनों में कुछ प्रेजेंट ही नहीं हो रहा, पहले ए और बी का बना लेता। सुनते करो हाँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन, आपको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कराना है ना। चलो पहले मानते हैं हम लोग किसमें, ए एंड बी में, खाली ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट बोलो, वो बीच में रखेगा हम लोग। क्या दिख रहा है हम लोग को? ए एंड बी में 12 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो हम लोग लिखेगा 6 एंड 12 यहाँ पर ए एंड बी का भीतर में। क्लियर। चलो अब दूसरा लिखते हैं हम लोग 2 4 ऐसा। क्लियर। एनी डाउट ओवर हियर? 6 एंड 12 इधर लिखते हैं। अब देखो बी एंड सी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो इसको यहाँ लिखते हैं। चलो यहाँ पर चलो 15 लिखते हैं। एम आई क्लियर दिस वन? सुनाइए। और ए एन इसमें 20 कॉमन है, चलो ठीक है। तो आपका रिप्रेजेंट करना है ऐसे करके। क्लियर। पर ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तीनों में कुछ भी इंटरसेक्शन, इसलिए हम नीचे से करा। एम आई क्लियर? तो लेट्स वी कंसिडर इन दिस वे। समझ में आया क्यों ऐसे कर रहे हैं हम? इसका नीचे से ऐसे करके सर्कल बना दे रहा है, रीजन क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं है। चलो अब देखते, सुने ये आपका सी है, ए एन सी में कुछ इंटरसेक्शन है, चेक करो। ए एन सी में एलिमेंट इज 20 इज कॉमन, सो ये छोटा गैप में हम 20 लिखेगा। चलो बी एन सी में कुछ कॉमन है, बी एन सी में आपका 15 है, तो ये छोटा गैप में 15 है, बस डन। नाउ 6 12 15 यहाँ पर लिखेगा 3 एंड 6, ठीक है नहीं, 3 6 हो गया था। क्लियर। 9 लिखना है यहाँ पर। चलो अब ए में 20 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो क्या नहीं है आपके पास? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, चलो हो गया। अब सी के पास 5 लिखना है, 10 लिखना है, बस दिस इज अ वेन डायग्राम, दिस इज अ वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट एवरीथिंग। यही बोला, यू इज द सेट ऑफ यूनिवर्स होल नंबर, होल नंबर ये है, डब्ल्यू लिख दो, पूरा बॉक्स बाहर में और सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये आपका रिप्रेजेंट, देर इज नो। क्यों यहाँ पर ऐसा वाला डायग्राम नहीं बना? रीजन समझा? बिकॉज ये वाला जगह है जहां पर तीनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हम फिर डिलीट करके बनाया। चलो दिस इज अ वेन डायग्राम। क्लियर। चलो नेक्स्ट।
लेट मिसिंग तो नहीं हुआ ना, 2 4 8, 3 3 6, 3 3 6, ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए स्कूल एग्जामिनेशन और क्लास 12 के लिए भी। क्लियर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, याद करना। क्लियर, तो हम लोग पहले फाइंड करेगा डोमेन। यू नो वेरी वेल, to find domain you have to remember how many criteria, dear? Two criteria, especially the two criteria, that denominator should not be equals to 0 and under root part should not be negative. So to find the domain, your concept is that 9 minus x square should be greater than equals to 0. Now we have to use which formula? This is a 3 square minus x square, wave curve method लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 minus x और 3 plus x should be greater than equals to 0. Let's withdraw a wavy curve. क्लियर, एक देगा, इसको 0 बनाएगा आपका -3 आ रहा है, इसको 0 बनाएगा 3 आ रहा है, इसको 0 3, इसका -3, ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। टेक एनी वैल्यू फ्रॉम हियर 3 to 4, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो ये रीजन हुआ नेगेटिव का। टेक एनी वैल्यू बिटवीन 3 to 3, -3 to 3, सॉरी 0, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नहीं, आपको चाहिए क्या? पॉजिटिव। सो आप, एम आई क्लियर? सो डोमेन क्या आया? सो डोमेन आपका आया कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके 3 तक क्लोज बाउंडेड। तो डोमेन आपका इजी था। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रेंज। हम लोग क्या फाइंड कर रहा है? रेंज फाइंड कर। यहाँ करना, आज का क्लास से लिख के रखो, आपको 2 क्वेश्चन आज का क्लास से आप लोग का एग्जाम में मिलेगा, एनुअल एग्जाम में 100%। 2 क्वेश्चन मिनिमम, 2 क्वेश्चन मतलब कम से कम 8 से 10 मार्क्स आज का क्लास से खाली मिलेगा। क्लियर, सेम क्वेश्चन, खाली नंबर डिफरेंट। अब सुनेगा रेंज। सो आपको पता होगा टू फाइंड रेंज, सुने भाई, अगर रेंज को फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना है? लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। और एक चीज वाई एक्सप्रेस करना है ना, और एक चीज आपको पता है कि नहीं, आपको हम बोला था देयर इज अ डिफरेंस, एक चीज यहाँ पर नोट करना, सुनिएगा। क्लियर, अगर हम लिखा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा, तो x का वैल्यू क्या होगा बोलने से √4 जब करेंगे प्लस माइनस आएगा। पर अगर हम आपको दिया डायरेक्टली x इक्वल्स टू √4, व्हाट डज इट इम्प्लाइज? अंडर रूट अगर करके दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो आपको खाली 2 लिखना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स सिंस अंडर रूट इज ऑलरेडी गिवन ओवर हियर, रिमेंबर दैट, यहाँ पर और एक एकदम नोट याद करके रखना कि एफ एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एकदम माइंड में सेटअप करके रख लेना ये, जब भी अंडर रूट अगर करके लिया, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन क्लास 12 में भी बनेगा। क्लियर, अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू √4? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज अ क्वाड्रेटिक सम एंड इट हैज अ 2 रूट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर अगर x इक्वल्स टू √4 दिया, मतलब अंडर रूट करके दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव खाली है, इसलिए ये लिखना नहीं भूलना। अब सुनो, ध्यान लागे, लॉजिक क्या था? टू फाइंड आउट द रेंज आपको एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मानना था, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई करना था। लॉजिकल सेम, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप देखना x का स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर डियर, ये इधर आएगा, x को टर्म्स में बनाना है, 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो x हो रहा है आपका अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। एनी डाउट? अब वही है, सेम लॉजिक इधर का और इधर का सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, इधर में y इज इक्वल टू, ये जो अंडर रूट है नेगेटिव, ये y है, पर यहाँ पर x क्या होना चाहिए? डिफाइन। तो x कैसे डिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और अंडर रूट का पार्ट नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ अंडर रूट आया तो हम क्या लिखेंगे? इसको 2 तरीका से सिखाया हम नॉर्मल क्लास में, आज एक तरीका यूज कर रहा है, ठीक है। चलो, 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी डियर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आई थिंक आई डोंट हैव टू सॉल्व, अगर आप लोग सीधा इसको और इसको रिफर करेगा, डिट्टो सेम है, देखो तो सिमिलरली हम क्या मानेगा, क्योंकि सेम है, देखो ना सेम है, खाली डिफरेंस क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो वी नो वेरी वेल वाई यहाँ पर क्या बिलोंग करेगा आपका, ये केसेस में वाई कहाँ पर बिलोंग करेगा? -3 to 3। पर ये तो जादू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। रीजन क्यों? क्योंकि हम बोला एफ एक्स मतलब वाई तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ध्यान लाके सुनना, इसका नीचे वेन एवर आई ड्रॉ अ लाइन मीन्स आपको उसका नीचे करना है। तो आप सोचिए, आप बोल रहे हैं आंसर -3 से 3 होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आप रख, ये देखो, ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ,
और आप बोल रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन क्या आया, इंटर कॉमन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या आएगा, ये वाला चीज़ आएगा। तो आपका -3 नेगेटिव वाला पार्ट को रिमूव करना है, ये खाली लेना है, क्या खाली ये। अब लिखना है सिंस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपका नेगेटिव को डिलीट करना है। सो देयरफॉर व्हाट इज अ रेंज, अ रेंज मीन्स 0 to 3, a 0 to 3, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्या देगा, 9 की जगह में 16 देगा, या फिर 25 देगा, या फिर 4 देगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करे मार्क। जितना भी क्वेश्चन रिवीजन क्लास में करा रहा है, इजी नहीं समझना, एकदम उसको करना है जैसे भी करके। चलो, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। चलो ये तो है ही, कुछ भी पूछता है भाई इसमें, अगर मॉड्यूलस पूछता तब भी मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, वहां पर अगर देखा होगा एक बार लिख दे रहे हैं सर, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आप लोग ज़्यादा मिस्टेक करते हो। सुने, हम एक बार क्वेश्चन को लिख दिया, -√3, क्वेश्चन हार्ड नहीं था एक्चुअली, आप लोग को कन्फ्यूजन है, याद करना। आप लोग को बार बार बोला गया है, जब भी a प्लस आई बी अगर a माइनस आई बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज रिमेंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, एनी डाउट। चलो सुनो, ये अगर आप लोग देखा होगा a प्लस आई बी a माइनस आई बी में, तो हम लिखेगा इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब √5 का स्क्वायर लिखेगा, आई नहीं लिखेगा, वहां देख लो। अब ये वाला चीज में मत लगा देना, यहाँ पर माइनस साइन है भाई, ये कंफ्यूज बनाने के लिए दिया है। अगर माइनस ओपन करोगे √3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, सो 2i√2 होगा। किसी के पास कुछ डाउट है तो बोलो, ये देखने से खाली भयंकर है, पर ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर। सो बिकॉज दिस इज वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग देयर, हियर इज अ माइनस साइन, आपको ब्रैकेट खोलना है, √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर आ रहा है आपका क्या 9, और यहाँ आ रहा है आपका 5, और नीचे आ रहा है आपका 2√2i। ठीक है, तो ये बन रहा है √2 2 से कैंसिल 7। अब नाउ रैशनलाइज नहीं करना है, सुनिएगा कहानी। रैशनलाइज कब करना है, जब आई का नीचे में प्लस माइनस होगा। और आप लोगों को एक ट्रिक्स दिया था, जब भी आई अगर नीचे होगा तो मल्टीप्लाई बाय आई टू द पावर ऑफ 4 बोला था ऊपर में, क्योंकि वाई, बिकॉज वी नो वेरी वेल आई टू द पावर ऑफ 4 इज 1। आई क्यू का वैल्यू सबको पता होना चाहिए, माइनस आई है, आई स्क्वायर भी सबको पता होना चाहिए, आई आई तो अपना ही डोमेन है, आई है, ये चीज याद होना चाहिए। एनी पावर ऑफ द आई कैन बी कन्वर्टेड टू 1 - 1 आई माइनस आई, कितना भी पावर दे दे। चलो, अब जब आई है, हम क्या बोला था आपको, यहाँ पर 7 बाई क्या आपके पास नीचे में √2 है ना, √2i, हम क्या करने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, आई टू द पावर ऑफ 4। अगर आई टू द पावर ऑफ 4 होगा तो ऐसा होगा कि नहीं, आपका आई क्यूब होगा कि नहीं। तो आई क्यूब का वैल्यू आपको पता है क्या है, √2 माइनस आई हो रहा है। तो आपको तो कन्वर्ट करना था कैसा, a प्लस आई बी का फॉर्मेट में, तो हम इसको लिखेगा 0 - 7 बाई √3 √2i। तो ये हुआ a प्लस आई बी। हियर व्हाट इज a, अगर a पूछता तो 0 है, रियल पार्ट नहीं है, और b क्या है आपका -7 बाई √2। क्वेश्चन सुनेगा, they might give you this one, prove that this is purely imaginary। so purely imaginary means where real part is 0, तो real part आपका 0 है। क्लियर। अगर इसका कॉन्जुगेट पूछता, फाइंड द कॉन्जुगेट, कुछ भी पूछे भाई, अब तो कुछ भी सब आएगा। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब चेंज द साइन, माइनस खाली इसका चेंज होगा। तो कॉन्जुगेट अगर पूछता, सो 7 बाई √2i। अगर क्वेश्चन पूछता फाइंड द मॉड्यूलस, ये तो और इजी भाई, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस तो है ही नहीं, एक्स तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर। तो जब भी अगर मॉड्यूलस पूछे तो सीधा ये लिख देना। आप एक चीज याद करना, ट्रिक्स। हाँ सुनो, अगर जेड में खाली ए है, व्हाट इज अ मॉड्यूलस, ए ही होगा। अगर जेड में खाली आई बी है, व्हाट इज अ मॉड्यूलस, बी खाली होगा। दैट मीन्स if याद करना, if z is purely imaginary and the purely real, then mod z is that real part or the imaginary part, but make sure that नेगेटिव भी होगा तो मॉड्यूलस में पॉजिटिव बनाना है। तो ये होगा, अगर यहाँ पर देखा होगा माइनस था पर हम लिखा डायरेक्टली इसका, क्योंकि देखो ऐसा होगा ना आपका 0 स्क्वायर प्लस 7 बाई √2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये कट के वही आने वाला है। चलो आपका सब करा दिया, कुछ डाउट, नेक्स्ट कुछ भी डाउट है पूछे। चलो ये क्वेश्चन तो कितना बार करा दिया था, फिर भी करा रहा है।
यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूफ दैट, आपको देने से यही देगा, यही क्वेश्चन बोला था, अगर बाइनोमियल से ये लोग क्वेश्चन सेटअप करेगा सपोज, तो ये देगा या फिर एमसीक्यू देगा, और कोई क्वेश्चन नहीं देगा। डिट्टो यही, खाली पावर चेंज करेगा। उस दिन हम लोग 4 में है ना, 6 में देगा या फिर 5 में देगा, ये देगा। ठीक है, चलो करते। 6 to the power of n, तो आपको बोला था ना 6 to the power of n minus 5 to the 5n is always divisible, always leaves remainder 1 when divided by 5. that means अगर 25 से डिवाइड करेगा तो आपका एक रिमाइंडर आएगा बोल रहेगा। तो सुनो ध्यान लगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन था आपको बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल थ्योरम से, पावर n वाला चीज को खाली सॉल्व करना है। कृष्णा समझ में आ रहा है कि नहीं? हो क्लास रेगुलर अटेंड कर भाई, ये लास्ट लास्ट में हियर। सो लुक ओवर हियर, सो 6 कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 + 5 होल टू द पावर ऑफ n लिखना है। अब ध्यान लगा के सुनना, क्या लिखेगा, 1 प्लस क्या लिखना है आपको पता है ना, कौन सा फॉर्मूला, 1 + x होल टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 nc1 x का खाली पावर लिखना है, nc2 x का स्क्वायर ऐसे जाएगा, nc3 x का अगर 1 होने से ऐसा x का क्यूब प्लस डॉट एट फिगर। चलो n क्या है, nc1 x लिखेगा प्लस nc2 x स्क्वायर लिखेगा प्लस nc3 x क्या लिखेगा हम लोग, x सॉरी x तो यहाँ 5 है ना, ये तो फॉर्मूला लिख क्लियर। चलो 5 लिखेगा प्लस nc2 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट में 5 to the power n minus 5n। अब सुनेगा ध्यान लागे, वी नो वेरी वेल nc1 मतलब n होता है, n 5n लिखा प्लस इसको ऐसे लगता है, सुनो ही सुनो, हाँ 5 to the n माइनस ये 5n है, सॉरी ये 5 to n नहीं, लास्ट का 5n है ना। अगर आप देखा होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। नाउ डियर जस्ट टेल मी अगर हम बोला आपको यहाँ पर 25 लिखा, यहाँ पर 25 का 4 लिखा और यहाँ पर 8 लिखा, व्हाट इज अ कॉमन, कॉमन क्या लेगा आप लोग, अगर ये दोनों है कॉमन निकालो बोलने से क्या लेगा, 25 का पावर कितना होगा 4, स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लेता है, चलो इसको 7 बनाता है, तभी ये छोटा वाला पावर लेगा, सो ये क्यूब हो जाएगा एक बार। यहाँ पर देखिएगा 5 स्क्वायर है 5 क्यूब है, ऐसे चलते चलते जा रहा है, तो सबसे छोटा पावर तो 5 स्क्वायर होगा। सो व्हेन यू टेक दियर 5 स्क्वायर, सो यू आर गेटिंग nc2, नेक्स्ट यू आर गेटिंग nc3, बट यू आर लेफ्ट विथ 1 more 5 बिकॉज आप 2 खाली कॉमन निकाला। सो ऑन आप अगर 2 बाहर निकाल रहा है तो n-2, और ये जो 1 है इसको हम यहाँ लिखा। इज देयर एनी डाउट? नाउ इफ यू सी डियर दिस नंबर, दिस ब्रैकेट पार्ट हैज अ फैक्टर, आगे में आपका 25 है, आगे में क्या है 25 है। So that means when you divide this by 25, it is perfectly divisible because it contains the factor 25. Now what is the remainder? 1 proved. क्योंकि अगर देखो 26 को अगर रिमाइंडर 1 क्यों आता है, क्योंकि 26 लिखा जाता है 25 + 1। अगर 51 को क्यों रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 54 को लिखा जाता है 25 × 2 + 1। इसीलिए आपका ये तो परफेक्टली जाने वाला है, जो बचेगा वो रिमाइंडर है। तो बात तो यही है। सो व्हाट आई राइट, एम आई क्लियर? सो बस आपका प्रूविंग हो गया। देयरफॉर 25 से जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो देयरफॉर वी सी दैट क्लियर 6 to the power of n minus 5 to the n leaves what, remainder what 1 if when divided by 25, when divided by 25। any doubt? कुछ डाउट? चलो क्लियर, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बोलो। प्रसिद्ध एनी डाउट? क्लियर? चलो ये क्वेश्चन तो आप लोग को बार बार किया दिया है, अगर आपको ये भी पूछेगा फिर भी ये आपको प्रीवियस का सैंपल पेपर में हम एग्जैक्टली डिविजिबल करा दिया था, ये रिमाइंडर वाला करा दिया तो सेम था। रिमाइंडर में जस्ट एक तो ये बचेगा, कहोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत बार करा दिया है, फिर भी आपको फिर से करा रहे। 1 a to the power of 4 को पहले अलग से सॉल्व करना है, a to the power of 4 प्लस 4c1 a का क्यूब b प्लस 4c2 a का पावर 2 b स्क्वायर, पता ना ये माइनस ये होता है,
प्लस 4c3 a का पावर ये माइनस ये और b का पावर क्यूब और लास्ट में 4c4 होगा तो b का पावर 4 लिखना। अगर यही चीज आपका नेगेटिव है तो पूरा प्लस माइनस ऑल आर सेम, ओनली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते जाएगा भाई, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा, खाली अल्टरनेट साइन होगा। अब आप लोग क्या कर रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इफ यू नोटिस हियर, तो प्रीवियस क्लास में जो हम किया था वह हम लोग क्या किया था, एडिशन। तो ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, ये ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, तो क्या कटेगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल टू द पावर ऑफ 4 माइनस a माइनस बी होल टू, सो दिस विल कैंसल, दिस विल कैंसल, सो यू आर गेटिंग, ये सेम है, सो ट्वाइस ऑफ दो तो आएगा, चलो 4c1 a क्यूब b, और यहाँ पर आएगा आपका ट्वाइस ऑफ, दोनों में 2 है, 2 ऑफ, यहाँ पर भी ऐसा आएगा 2 ऑफ 4c3 a का b क्यूब। सो आपको पता होगा 4c1 इज 4, ये a क्यूब b, और 4c3 is also 4 because we know very well nc1 is also n and ncn minus 1, एक भी कम होगा तब भी n ही है, तो वही लॉजिक लगाया हम। क्लियर, तो ये 4c3 भी क्या ही होगा, 4 ही होगा, सो a b क्यूब। सो व्हाट इज कॉमन, सो कॉमन इज 8, a b इज अ कॉमन है कि नहीं, a b, तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर, तो ये हुआ आपका एक्सप्रेशन वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट आपको बोला है फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू, तो सेम एक्सप्रेशन है, ओनली व्हाट, हियर आई एम पुटिंग a एज अ √3 एंड b एज अ √2, बस हो गया। यहाँ पर √3 प्लस √2 का होल 4, प्रीवियस क्लास में शायद हम लोग किया था 5 का पावर, ऐसे ही लग रहा है। सो ये होगा 8 इंटू √3 इंटू √2, ब्रैकेट में आपका √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो 8 √3 √2 इज √6, यहाँ भीतर में क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 8 40 √6 इज द आंसर। ये आपका और भी करा दे रहे, कुछ डाउट मयंक, एनी डाउट, वेदांत एनी डाउट, ओके क्लियर। कृष्णा कुछ डाउट है तो बोल, तेरा डाउट कोई इसी चैप्टर में है तो बोलना, क्लियर। चलो नेक्स्ट, लिख के रखो, लिखो, डीपीएस के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आप लोग के लिए भी देगा ये क्वेश्चन, सेम नंबर नहीं बोलेगा पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन सेम कंसेप्ट आपको क्लास 12 में लगेगा 3D डायमेंशन में, यहाँ पर 2 डायमेंशन में। तो ये क्वेश्चन में इमेज भी से क्या आएगा, हम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस बोल रहा है। तो सब लोग 1 मिनट के लिए ध्यान देना है, यहाँ पर सुनेगा। चलो यहाँ पर एक लाइन है, हम थोड़ा दूर लिखते हैं, सब लोग 1 मिनट यहीं पर देखना है, कुछ नहीं कॉपी करना है। आप लोग यहाँ देखो, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, आपका यही क्वेश्चन है। यहाँ पर सोचो एक पॉइंट है, क्लियर, हम 2 क्वेश्चन कराएगा, यहाँ पर जो है वो भी कराएगा और एक तो इमेज भी निकालेगा। ये पॉइंट का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, लाइन वॉक मिरर का काम करेगा, तब भी यही फर्स्ट फाइंड करना है। एम आई क्लियर, सो आई एम फाइंडिंग 3 थिंग्स इन द क्वेश्चन, जो जो आ सकता है। एक पूछेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक पूछेगा आपका डिस्टेंस, एक पूछेगा आपका इमेज, और तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आप लोग का पेपर में होगा, देख लेना। क्लियर, वो भी किस मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 3 भी नहीं, तो सुनेगा। अब इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, यहाँ पर कंसेप्ट ये है, पर क्लास 12 में जाके इसको 3 डायमेंशन में अलग लेवल से करेगा, पर कंसेप्ट ये है, सुनो। Now dear, can we say that this foot of the perpendicular is a point of intersection of this yellow line and the white line? So point of intersection can be solved when we simultaneously solve that equation. But first you need this yellow line equation. अगर आपको पता होगा तो अगर ax plus by plus c equals to 0 दिया था, इसका कोई भी लाइन पैरेलल लाइन कैसा होता है, बोला था हम ax plus by plus k equals to, it differ by only constant term। अगर कोई भी लाइन इसका परपेंडिकुलर तो क्या बोला था, यू विल इंटरचेंज द एक्स एंड वाई कोएफिशिएंट एंड चेंज द साइन, ऐसा होगा बोला था। तो आई एम राइटिंग इन दिस वे, ये वाला लाइन। चलो इसको पॉइंट का नाम देता है P, इसका नाम देता है फुट को A। क्लियर, ये डायग्राम थोड़ा मिस टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिखाना है। चलो हम लिखेगा
पहले मानेगा हम लोग द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट 3x minus 4y minus 16 equals to 0 is येलो लाइन का बात कर रहा है। क्लियर, येलो लाइन का बात कर रहा है। सुनो, ये 4 इधर 3 इधर 4x plus 3y is equals to k. Is there any doubt? Concept यहाँ पर है, any line which is perpendicular to any of the given line is just interchange the, इजी होगा। लाइन देगा तो ये ट्रिक्स याद करना जल्दी होगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट वही है, स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा रहा है, उल्टा होता है -1 पर ये जल्दी होता है। क्लियर, चलो नाउ नेक्स्ट, कैन वी से दैट डियर दिस येलो लाइन दिस वन पासेस थ्रू विच पॉइंट, पासेस थ्रू, डायग्राम बना देना ही इजी होगा। पासेस थ्रू पॉइंट -1, 3, पास मतलब इसका एक्स एंड वाई का वैल्यू देना, यहाँ पर डालो तो 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू के। So -4 plus 9 is your 5 is equals to k. Therefore, required equation नहीं sorry required तो चाहिए नहीं मुझे अभी। Therefore, the equation of perpendicular line जो है ये येलो लाइन का बात कर रहा है। येलो लाइन क्या है आपका 4x plus 3y is equals to 5। यहाँ तक पहले बोलो समझ में आया कि नहीं। नाउ हम लोग को ये लाइन मिल गया, ये लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ जाएगा, फुट वही है, चलो फुट मानते हैं। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P ऑन लाइन 1, लाइन 1 तो नहीं सॉरी, ऑन गिवन लाइन, ऑन गिवन लाइन B मानते A। ये आपका क्या है, foot of the perpendicular है, and we can say that this foot of the perpendicular is equals to the point of in P dot OI मतलब point of intersection of given line and equation 2 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलो कहानी के लिए, अरे बाबा लो इसको थोड़ा कर दिया, मुझे वहां जगह चाहिए। चलो, यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 लिख दिया। ये 16 इधर कर दिया। चलो इसको पता है ना कैसे सॉल्व किया जाता है, इंटू 3 इंटू 4, क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड, चलो 3 4 आर 12x प्लस, ये क्या हो रहा है, इसको करता है एक बार यार। चलो 3 3 आर 9y इज इक्वल्स टू 15, 4 इंटू 3 12x माइनस 16y इक्वल्स टू 64। कुछ डाउट है तो बोलो, कौन आया था, एनी डाउट, चलो सॉल्व इट। माइनस प्लस माइनस कैंसल, 25y हो रहा है 14 में, क्या है 3x माइनस 4y, ठीक है 3x माइनस 4y 16, 4x माइनस 3, पासिंग थ्रू कितना है -1, 3। एक मिनट है, एक बार चेक कर लेता है, क्रॉस चेक, -4 आ रहा था। भाई एलिमिनेशन मेथड अब यहाँ सिखाएगा, एलिमिनेशन मेथड ये और ये सॉल्व कर रहा है। क्यों मतलब भाई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो लाइन इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन का इंटरसेक्ट क्लास 10 में कैसे कर रहा था, क्लास 10 में था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढता था, दोनों को सॉल्व करके, तो सॉल्व कर रहा है। ये तो -14 में 5 9, 5 में 1 49, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव में है, ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ रहा है। -49/25, 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, 4 3 12, 4 4 16, 4 16 64। When I subtract, this is the added and subtracting correct है। चलो ऐसा ही पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फुट therefore from कोई इक्वेशन में डालते हैं भाई, चलो 1 नंबर में डालते हैं, 1 नहीं 2 नंबर में डालते हैं, फ्रॉम 2 है कि नहीं, ये वाला इक्वेशन में। हाँ तो 4x प्लस 3y, y मतलब -49/25 इक्वल्स टू 5 लिख के रखो, आएगा ये क्वेश्चन, आएगा ये क्वेश्चन आएगा, याद करना, लिखो ये क्वेश्चन पक्का है 100%। ये माइनस हो रहा है उधर जाने से प्लस, हाँ 3 9 जा 27 कैरी 2 3 4 12 14/25
Clear? So when you take the LCM, it will be 125 plus 147 by 25 and the 4x. यहीं पर सॉल्व कर दिया. चलो 4x is equals to 14 का 4 कैरी 1 4 2 6 7 कैरी 1 नहीं हो रहा है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 25. हाँ ठीक है भाई, अच्छा ही किया हम. हाँ इधर में माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा, ये प्लस है, या माइनस है भाई माइनस, तो प्लस इन माइनस माइनस उस साइड जाएगा प्लस होगा. ठीक है, चलिए 2 2 1 2 2 3 6 2 7 बस इतना ही कट रहा है. तो x का वैल्यू आपका आ रहा है 137/50. सो यही हुआ आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. कहाँ लिख देगा आप? यहाँ पर याद करना है, ड्राइव ऐसे ऐसे, उसके बाद ये देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, यही पूछा था. आपका आंसर इतना में 137/50 कमा y किधर आया -49/25. अब हम तुम्हारे दूसरा एक्स्ट्रा करा रहा है. चलो एकदम ज्यादा. इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा बताए इसमें दूसरा, ये तो आपका ऐसा ही आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछेगा इमेज, ये पॉइंट का इमेज. तो अब थोड़ा फिजिक्स लगेगा. फिजिक्स फिजिक्स बोलता है कि ये अगर इमेज है इसका, चलो इमेज का पॉइंट का नाम दे दिया हम A, B, C. इसका इमेज मान दिया Q. इमेज क्या मान दिया हम भाई, ये बेचारा इधर उधर दौड़ रहा है आज. क्वेश्चन खत्म हो गया ये जो दिखाना था, पर ये इधर बैठे भाई. फिजिक्स क्या बोलता है, अगर ये लाइन मिरर का काम करेगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट इमेज आर सेम. दैट मीन्स इफ इट इज स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट में होगा, तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा. तो ये एक्स्ट्रा करा रहे हैं हम. एक्स्ट्रा हम मान रहे क्यू 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 क्यू, दैट इज A, B, C, B इमेज ऑफ P. देन हम क्या बोला, अगर ये इमेज होगा भाई, ये वाला A इसका मिड पॉइंट होगा, देन A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. थोड़ा खाली करा दिया, सॉल्व करने का जगह नहीं कि समझने से हो गया. चलो इसका मिड पॉइंट आप लोग को, अरे हे भाई सॉरी यार, ABC लिख दिया हम. 3D पढ़ा रहा है ना अभी 12 का, इसीलिए ऐसा हो रहा है. 2D A, B. ठीक है, चलो A, B इसका इमेज बना, तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला जाएगा, A -1/2 B + 3/2. समझ में आया कौन सा फॉर्मूला, क्लास 10 का x1 + x2/2 वाला फॉर्मूला. तो इसका मिड पॉइंट -1 + A/2 3 + B/2, यही A है. A क्या आया था वहां पर है इमेज A. तो ये हुआ 137 बाई क्या आया 50 कॉमा -49/25. प्लीज कंपेयर इट डियर, फ्रॉम हियर टू हियर कंपेयर करना, ये तो ये कंपेयर करना, आपका A एंड B आ जाएगा वो इमेज. और क्या पूछ सकता, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक तो वो नहीं कराएगा, बस समझाएगा. एक पूछेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोल देगा भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे भी ढूंढ सकता है, हम लोग के पास फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला क्या था, ये डालना था ना, -1 इधर डालेगा 3 इधर डालेगा, डिवाइडेड बाय √A² + B², उससे भी निकलेगा. पर एक बात याद करना, लिख के रखो वॉल में, एग्जाम का एक दिन आगे में देख के जाना, आएगा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर इमेज. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर इमेज आएगा 2D में. क्लियर? चलो नेक्स्ट. इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. आज का क्लास में सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा रहा है, हाई प्रोबेबल क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. लो 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 लो, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन. चलो दो ही क्वेश्चन है ना, सॉल्व करके एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन बोल रहा है, तो सॉल्व करता है भाई. पहले इसको 5 2 डायरेक्ट लिख दिया. आप लोग एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, क्वेश्चन का पहले कॉपी कीजिएगा. हम डायरेक्ट लिख दिया 10x -5 7 35 -6x -9. इजी है, वेरी इजी है. क्लियर? ठीक है, 10 और ये 4x -44 हो रहा है भाई, <0 चलो 4x <= 44 हो रहा है. आप डिवाइड कर सकता है, पॉजिटिव नंबर है, साइन इंटरचेंज नहीं होगा. चलो x का वैल्यू 44 से कम. दूसरा चीज 2x + 19 <6x. जब भी याद करना है ऐसा, जब भी क्वेश्चन आएगा जहां पर x ज्यादा वहां पर लेके जाना, x उधर ज्यादा है उधर लेके जाओ, 47 इधर लेके आना.
चलो लेस देन 6x माइनस 2x, तो ये हो रहा घटेगा ना, इधर में तो 4x आएगा भाई, इधर में 17 में 9 घटने से 8 आ रहा है, और 3 में 1 घटने से 2 आ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट है, माइनस आएगा पर पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा है भाई, 4 से डिवाइड कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये नेगेटिव साइन इंटरचेंज नहीं होगा 7, सो x इज ग्रेटर देन -7, ठीक है ना, देखो मुंह कहाँ पर है, वही ग्रेटर है, ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन -7 और लेस देन, साइन ठीक ही लिखा ना, हाँ चलो ठीक है, तो आपका सोल्यूशन है आपका, अगर बनाएगा तो -7 से लेके कहाँ तक 11 तक, दोनों क्या है क्लोज बाउंडेड, ये तो हो गया, अब नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू प्लॉट इन नंबर लाइन, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, -7 का जगह या 11 का जगह, ये मेजर्ड एक्यूरेट नहीं चाहिए आपको नंबर लाइन में, अगर दोनों क्लोज बाउंडेड है तो आपको बोला था डॉट, यहां से यहां तक डॉट, और यहाँ पूरा खींचना है, ये हुआ आपका आंसर, पर अगर ये ओपन बाउंडेड होगा तो क्या बोला था आपको, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता ओपन -7 इधर में 11 क्लोज होगा, तो बबल 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 मतलब गैप जैसा होगा, ऐसा रिंग जैसा, और ये पर पूरा सॉलिड, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बबल होना चाहिए, ऐसे करके राउंड ऐसे, सॉलिड नहीं होना चाहिए, पर इधर में अगर क्लोज होगा तो सॉलिड, ये हुआ, ये दोनों बबल क्लियर, एक्स्ट्रा है भाई, आंसर यहाँ है, यहाँ खत्म, दूसरा, ये हुआ आपका सेक्शन सी, 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिया, अब आएगा सेक्शन डी, सेक्शन डी comprises 32 to 35, 5 marks each, first question from here, first question is from the limit, a limit first second third form, है कि नहीं, फर्स्ट फॉर्म क्या था, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ लिमिट, फर्स्ट फॉर्म ये था ना, फर्स्ट फॉर्म लिमिट में क्या, हाँ हाँ ठीक बोला भाई, फर्स्ट फॉर्म क्या था, डायरेक्ट पुटिंग व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ द लिमिट बोला था, अच्छा सेकंड फॉर्म क्या था, सेकंड फॉर्म था जब अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ऊपर का चीज फैक्टराइज करना है या फिर फॉर्मूला डालना है, थर्ड फॉर्म था ये जब अंडर रूट प्रेजेंट है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो रेशनलाइज करना है, चलो पहले 1 नंबर, 5 मार्क्स का 2.5 2.5 मार्क्स, सो लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 √1, पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद ट्रिक्स लगाता है भाई, ट्रिक्स कैसे लगाना है आपको तो पता है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, रैशनलाइज के लिए आपको क्या बोला, जहाँ रैशनलाइज हो रहा है उसको सीधा लिखना भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग क्लास 11 में भाई, क्लास 7 में थोड़ी रैशनलाइज कर रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका समझ में आ गया, ऊपर नीचे ये सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर नीचे रहेगा, सेम मल्टीप्लाई होगा तो ये रैशनलाइज करने से क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b², ऐसे कर देना डायरेक्टली, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पर ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान देना है, तो अगर आप लोग ब्रैकेट ओपन करेगा ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर में 3x माइनस माइनस प्लस 6x आ रहा है, हम डायरेक्ट लिख दिया, लिख सकते हो आप एग्जाम में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा आपको, एम आई क्लियर, ब्रैकेट खोलते हुए ध्यान देना है, -1 कैंसिल होगा, -1 प्लस, तो ये 6x कैंसिल, ना अगेन आई विल चेक वेदर द डिनोमिनेटर आर 0 और नॉट, सो अगर हम 0 यहाँ पुट किया तो 1 + 3 × 0 तो 0 होगा, पर ये 1 होगा, सो 1 तो आपका √0 नहीं होता है, सो आपका 0 नहीं हो रहा है, सो वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ द लिमिट, कुछ डाउट, तो 6/1 + 1 इज इक्वल टू 6/2, दैट इज योर 3, ये हुआ आपका आंसर 1 फॉर्म का, नंबर 2, कुछ डाउट है, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, sin 2x + sin 6x बाय sin, हम तो थोड़ा जगह छोड़ के करेगा सीधा भाई, उतना मेरा पास टाइम नहीं है, sin 5x माइनस, आपको बोला था अगर ट्रिगोनोमेट्री जब कर रहा है लिमिट में, ट्रिगोनोमेट्री जब कर रहा है लिमिट में, अगर लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इजी दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, साइन एक्स का नीचे में x चाहिए, या फिर 1 - cos x को कन्वर्ट करना है 2 sin² x/2, या फिर आपका क्या करना है, कन्वर्ट इनटू बेसिक आइडेंटिटीज करके वही फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इजी होता है अगर ट्रिगोनोमेट्री में लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0, अगर लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0 नहीं दिया तो ये क्वेश्चन होगा 8 फॉर्म का, 8 फॉर्म इज कन्वर्टिंग, लिमिट चेंज का क्वेश्चन होगा, पर आपको पता है साइन एक्स जहाँ जहाँ होगा उसी का एक्स जितना है उसका नीचे में उतना एक्स चाहिए, तो आपको पता है यहाँ 2x है तो हम यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 2x डायरेक्ट, यहाँ पर 6x मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 6x, यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 3x,
यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 5x। अब ध्यान लगा सुनना, अभी पहले वैल्यू पुट नहीं कर देगा भाई, फिर तो झमेला हो जाएगा, है कि नहीं। आपको तो पता है अगर ये होने से इसका वैल्यू कितना है भाई, कितना है इसका वैल्यू, ये सब बॉक्स का वैल्यू 1, द वैल्यूज इज 1। सो व्हाट यू आर गेटिंग, you are getting 2x plus 6x in the numerator dear, and in denominator you are getting 5x minus 3x। साइड में प्लीज राइट डाउन द रीजन, लिमिट x extending to 0 sin x by x is values is 1। चलो ऊपर में क्या बन रहा है, अब वैल्यू नहीं डाल सकता है, 0 आ रहा है, ऊपर में बन रहा है आपका 8x, नीचे में बन रहा है 2x। अब ये x x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, फ्री फ्रॉम लिमिट, द आंसर इज 4। बोलो। हाँ समझ में आ गया, ऐसे बोला भाई, स्कूल में आपको बोला कि x एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये तो आपको ये लिमिट या ये भी 6x एक्सटेंडिंग टू 0, तो आप ऐसे एक काम कर देना, लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0 इसके जगह में ऐसे कर देना, सर लोग को समझ। नौटंकी, आंसर क्यों अलग आ रहा था। हाँ सुनो, ऐसा नहीं था, क्या बोल रहा था ना सर, सर बोल रहा था कि अगर आप लोग का सर जो बोल रहा था वो था आपका लिमिट अगर x एक्सटेंडिंग टू 0 है, सिंपल लॉजिक सोचो, अगर x 0 है भाई तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा वो भी एक्सटेंडिंग टू क्या ही होगा भाई, 0 ही होगा। तो अगर x एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसमें 2x एक्सटेंडिंग टू 0 चाहिए था, वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप अगर ज़्यादा रिसीव कर रहा है ऐसे कर देना, x एक्सटेंडिंग टू 0 x एक्सटेंडिंग टू 0 देयरफॉर लिमिट x एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई x इक्वल्स टू 1। ये उसी सब में प्रूफ कर दिया भाई, सब में पुट कर दिया, हम पुट कर दिया, तो चलो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, चलो ये लिख देना। क्यों मार्क्स काटेगा, नहीं काटेगा, बोल देना सर लिमिट x इंटू 0 है, एक्स एक्स इंटू भी तो 0 है, तब ये x भी 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा, बस ठीक है भाई। चलो दूसरा, अब फाइंड द डेरिवेटिव्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है, हम एक्चुअली ये इसको नॉर्मल होता है तो बेसिक नॉलेज से कर लेगा, हम साइन 2x का कर दे रहा है, कॉस 3x का खुद आप लोग कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग को नहीं पढ़ाया गया एक्चुअली, सिलेबस में एक्चुअली नहीं है, फिर भी टीचर लोग पढ़ाता है कितना, जैसा डीपीएस में आप लोग का पढ़ा रहा है इसलिए खाली करा रहा है, और वेरे साइंस सेक्शन में भी आप लोग का जीडी गोइंका में किया गया है, तो हो सकता है दे सकता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का एक बार फिर से, अगर जिस चीज़ को नहीं पढ़ा, हम भी नहीं पढ़ा है रेगुलर में, क्योंकि ये चाहिए भी नहीं उतना। सो एफ डैश एक्स का प्लीज़ फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, सब लोग प्रीवियस क्लास में भी लिखाया था, अगर दे दिया बेकार में फिर क्यों छोड़ना ना। लिमिट तो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, लिमिट का इतना सारा सम किया तो वी कैन इजीली सॉल्व द, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है आपका फंक्शन और लिमिट को मर्ज करके डेफिनेशन बनाया हुआ। अब कैसे डेफिनेशन है वो आज नहीं सिखा पाएगा हम, ठीक है, ये हम एक्चुअली सिखा दिया था, एफ डैश एक्स क्या होता है बोल के डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव में सिखाया तो है। सो आपका होता है भाई एफ डैश एक्स जो है उसका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव्स लिमिट एच एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ये आया था स्लोप का कंसेप्ट से, हाँ सिखाया है हम, अगर आप लोग देखा होगा आप लोग डेरिवेटिव्स का फर्स्ट क्लास सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स का फार्मूला कैसे आया बोल के हम ग्राफ बना के सिखाया है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया, सिखाया पर सम नहीं कराया गया, मतलब हाउ दिस फॉर्मूला केम्स अच्छा तरह से हम स्ट्रेट लाइन को लेके समझाया है, आप देख लीजिएगा वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में। चलो अब हम लोग खाली 1 नंबर कर रहे हैं क्योंकि 2 नंबर सेम होगा। तो आपके पास एफ एक्स दिया है क्या, इसका दिखाना, हम 2 तरीका से कराएगा, हाँ एक कराएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, एक कराएगा नॉर्मल से, नॉर्मल नॉर्मल डेरिवेटिव्स, क्लियर। तो एफ एक्स अगर ये है भाई तो व्हाट इज एफ एक्स प्लस एच, सब लोग को फंक्शन अच्छा तरह से पढ़ा दिया था हम, तो अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज होगा आउटपुट चेंज अकॉर्डिंगली बोला था, तो ये हो रहा है आपका साइन 2x प्लस 2h, ठीक है। चलो अब हम लोग कहानी करते, देयरफॉर f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लिखा हाँ भाई, ये है फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू डाला साइन 2x डिवाइडेड बाई, सॉरी 2x डिवाइडेड बाई h, विच फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन डी, साइन का फॉर्मूला में अल्टरनेट होता है, अगर माइनस है तो पहले कॉस होता है, c प्लस डी साइन c माइनस डी बाई 2। चलो
लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू cos c plus d by 2 sin c minus d बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अगर देखा होगा 2x कैंसल, तो आपका बन रहा है यहाँ पर साइन लिमिट h टेंड टू 0 टू cos, या थोड़ा सुनिएगा, नहीं समझ में आने से बोलिएगा। 2x कितना है x 4x, और यहाँ पर 2h। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेगा सबको बाई x 2x आ रहा है और प्लस h आ रहा है। समझ में नहीं आया तो सिंपल बोलो मुझे, 2 से इसको डिवाइड x बनेगा, यहाँ h बनेगा, यहाँ पर x 2x बन जाएगा। यहाँ पर आपका बन रहा है 2 कैंसिल होगा साइन h। और आपको पता है ना यहाँ का इसका नीचे में h भी है, यही है ना, होल h था, तो आपको पता है इसका वैल्यू कितना आता है 1। लिमिट x 0 साइन h इज 1। सो आपका आंसर आया 2 cos 2x खाली, क्योंकि h का वैल्यू 0, ये हो गया लिमिट बोल देना h एक्सटेंडिंग टू 0 साइन h बाई h होगा 1। ठीक है, चलो अब कहानी सुनो। व्हाट इफ विल डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट डेरिवेटिव्स। तो अब देखेगा ध्यान, फाइंड द डेरिवेटिव्स बोलता cos x नहीं कर दिया भाई, डिटो सेम है, ओनली व्हाट इज द डिफरेंस द फॉर्मूला। यहाँ लगेगा cos c माइनस cos d, सो cos c माइनस cos d का फोर्थ का एक्सेप्शन फॉर्मूला डाल देना। क्लियर, चलो इसको मानते हुआ या अब नॉर्मल, ये डायरेक्ट, नॉट फ्रॉम प्रिंसिपल, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सब लोग सुनिएगा। सो आप लोग के पास 3 रूल है, वन इज प्रोडक्ट रूल, वन इज क्वेश्चन रूल, अनदर वन इज अ चेन रूल। एक्चुअली चेन रूल ज्यादा नहीं है पर करना है, हम अच्छा तरह से बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है। तो प्रोडक्ट रूल मीन जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन 2x तो एक फंक्शन है। क्वेश्चन रूल जब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, जो हम लोग अभी बाद में करेगा। और व्हेन द चेन रूल, चेन रूल ऐसा होगा कि हम लोग के पास फॉर्मूला है पर एग्जैक्ट वो फॉर्मूला नहीं है। मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग के पास है पर डी डी एक्स ऑफ साइन 2x नहीं है, डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स नहीं है। हम लोग के पास क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, तो हम लोग इसको चेन रूल लगाएगा। तो सुनेगा कहानी, तो हम इसको मानेगा x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ साइन x, इसको हम x बोल रहा है, ध्यान लगा के सुना, इसको हम x बोल रहा है। सो चेन रूल बोलता है डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होगा cos x, है कि नहीं। अब जिसको आप x बोला उसको आप फिर से डिफरेंशिएट, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, ध्यान लगा सुनो, डी डी एक्स ऑफ साइन x बोला, सर डी डी एक्स ऑफ साइन x तो cos x है, और फिर से डी डी एक्स ऑफ 2x। ये एक कॉमन एरर होता है, ये रॉन्ग, क्योंकि आप x लिख दिया भाई, लिखना तो वही था x, बोलना खाली x था। दूसरा और एक तो कॉमन एरर स्टूडेंट करता है, यहाँ पर cos 2x लिख देता है प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x करता है, तो भाई चेन रूल में प्लस नहीं होता है, ये एक तो कॉमन एरर। और एक तो दोनों वाला मिक्सअप वाला कॉमन एरर, पहले भी cos x किया फिर से प्लस ले आके डी डी एक्स ऑफ 2x, तो ये भी रॉन्ग। तो बात को समझिएगा, तो आप लोग का ज़्यादा मिस्टेक होने का चांसेस है, हम सब यहाँ पर लिख दिया है। तो बोलते बोलते हुए अगर खाई में डूब गया तब तो हम कुछ नहीं बोल सकता भाई, तो इसलिए ये कॉमन एरर नहीं करना है। चलो डी डी एक्स ऑफ 2x, वी नो दैट कॉन्स्टेंट टर्म कैन बी पुट आउटसाइड 2 है, सो व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ x और x, सो 2 cos 2x, सेम आएगा आंसर। तो पर अगर सर सेम तो आ रहा है तो क्यों वो करे भाई, अगर मेंशन किया है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, यू हैव टू डू दैट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये हुआ आपका क्वेश्चन। ओके, ए बी सी डी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे बोलेगा तो हम लोग जाना पड़ेगा सीधा ड्रॉप हो गए 2 साल बैक, क्लास 9। क्लास 9 में बोला गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर है तो ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल whose 4 vertices touches the circumference of the circle, and its property is that the opposite side is supplementary। ये और ये जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, ये और ये जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। चलो कहानी खत्म, यहाँ पर स्टार्ट। क्लियर, since ABCD are the angles of the cyclic quadrilateral, so we can say that A plus C is 180 degree dear and B plus D is 180 degree। तो ये हो गया 180 डिग्री का काम तमाम। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है 1 by 1। सो ये भी क्वेश्चन हम कर लिया है, ऐसा क्वेश्चन हम करा दिया है। cos C plus cos D, LHS ला, ये LHS हाँ।
चलो एक में कन्वर्ट करता है, कॉस ए को ऐसे रखता है भाई, कॉस बी को ऐसे रखता है, कन्वर्ट करता है कॉस सी को। कैन वी राइट डियर सी एज अ कॉस 180 डिग्री माइनस ए, और यहाँ पर भी कॉस 180 डिग्री माइनस बी। एज वी नो वेरी वेल 180 डिग्री मतलब तो 2 पाई बाई 2 होता है कि नहीं? तो 180 डिग्री में कॉस क्या ही होगा? कॉस ही होगा। चलो पॉजिटिव की नेगेटिव एक बार थ्रो करते हैं हम लोग का क्वाड्रेंट में जाके। लेट्स गो टू बैक टू क्वाड्रेंट। 1 2 माइनस, माइनस मतलब आपका फिर से ये है कि नहीं 180 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सेम लॉजिक हियर आल्सो। तो आप देखा होगा ये कैंसिल, अरे इधर का एक इधर गायब, ये तो जीरो। ये हुआ आपका केसेस। आपका क्या क्वेश्चन बोल सकता है? इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री करके एक क्वेश्चन आएगा इसी तरह में। चलो कुछ ए बी देगा, सी में कन्वर्ट करने के लिए सबको सी में कन्वर्ट कर देना। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, हम पहले ना भाई इसको ना इजी बनाएगा, तो बहुत झमेला वाला चीज़ हो रहा है यहाँ पर। 180 180 क्या क्या बोल रहा है? 180 प्लस बी है कि नहीं, प्लस कॉस क्या है 180 डिग्री प्लस सी है ना, उसके बाद माइनस साइन 90 प्लस डी। हाँ चलो पहले सिंपल भाई, पहले कन्वर्ट करेगा भाई ये सबको। कॉस 180 डिग्री कॉस ई होगा माइनस ए होगा, कुछ डाउट? कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस बी होगा, फिर कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस सी होगा, और नाउ साइन 90, सुन के रखो, साइन 90, साइन किस में कन्वर्ट होगा? 1 पाई बाई 2 मतलब कॉस में कन्वर्ट होगा, और 90 प्लस यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस ऐसे रहेगा कॉस डी। तो मेरा हिसाब से मुझे करने का जरूरत नहीं है अब। एम आई क्लियर? 180 डिग्री, ओ 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या होता है? 180 डिग्री मतलब आपका 2 पाई बाई 2 होता है। आपको बताया ना ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, अगर n पाई बाई 2 बाई प्लस माइनस थीटा में अगर n इवन हो तो चेंज नहीं होगा, और 180 डिग्री यहाँ पर माइनस, यहाँ ये क्वाड्रेंट में का सब नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पर साइन पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव। अब इसमें से तो हम अगर स्मार्ट हो गए तो हम तो लिखता माइनस कॉमन, और सिंस हम तो यही क्वेश्चन अभी अभी करके आया है, cos c प्लस cos b cos d क्यों सॉल्व करेगा? इसको सीधा लिखेगा 0 फ्रॉम 1 लिख देगा। अभी तो प्रूफ किया ऊपर में। चलो कहानी सुनते हैं दूसरा क्वेश्चन। परम्यूटेशन का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9, चलो बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन व्हेन? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भूलना नहीं है 11 जाके भी, क्योंकि 12 में हम लोग को ये क्वेश्चन चाहिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? चलो एक बार क्विक रिकल करते हैं, व्हेन टू यूज परम्यूटेशन एंड व्हेन टू यूज कमिटी, क्योंकि बैक टू बैक रखा हुआ है, इसका और क्वेश्चन होगा शायद। हाँ और में था, ठीक है 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पहले करा दे रहा है। सुनो ध्यान लाके सुनो, जब भी आपको कोई चीज चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप लगाना है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, कमिटी मेंबर बनाना, ग्रुप मेंबर बनाना, क्रिकेट का टीम बनाना है, क्लियर? कोई भी किसी को चूज करना है तब आपको लगेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब देखो, जब जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट तब तब साइन चलेगा प्लस, रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड नहीं तब साइन चलेगा मल्टीप्लाई। मतलब अगर आपको 5 मेंबर चाहिए, अगर आपके पास 5 मेंबर सेलेक्ट हुआ, 5 मेंबर आ गया, तो साइन चलेगा प्लस का उसके बाद। पर अगर आपके पास 5 में से अभी जस्ट आप सिलेक्शन प्रोसेस से 3 खाली सेलेक्ट कर रहा है और 2 बाकी है, तो आपको चलेगा साइन मल्टीप्लाई। चलो सुनते क्या बोल रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, इजी क्या होगा, आपको कितना का कमिटी बनाना है उसको साइड में लिख देना 7। क्लियर? कहाँ से सेलेक्ट करना है भाई, उसको यहाँ लिख देना। बॉयज होगा 9, गर्ल्स होगा 4। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? In how many ways this can be done when the committee consists of exactly 3 girls? Clear? So the number of, ऐसा देखो कहानी ना इस तरह से लिखना चाहिए कि टीचर भी समझेगी जो मुझे भाई मुझे क्या चाहिए ऐसा। इसलिए आप लोग देखा होगा हम अक्सर जल्दी ऐसा करता है, ये लिखता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, मतलब जो मुझे चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन दे दिया, अब वो तमाशा नहीं बोलना पड़ेगा। Committee, the number of way in which in which the committee consists of exactly 3 girl is, नहीं लिखना पड़ेगा ये सब, कैंसिल बोल दिया। तो जो चाहिए उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे पूछा है, जो मुझे चाहिए वो लिख रहा है आप डायरेक्ट सीधा, एक्जेक्टली 3 गर्ल्स भाई। तो गर्ल सेलेक्ट होगा यहाँ से
4C3। क्या आपका मेंबर कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। रीजन? क्योंकि आपको चाहिए था 7 कमिटी मेंबर, आपके पास जस्ट 3 सेलेक्ट हो रहा है, सिंबल चलेगा मल्टीप्लाई का। अब रहा और 4 आदमी, क्योंकि 3 मेंबर से कमिटी नहीं बनेगा, 4 में मेंबर आएगा कहाँ से? बॉयज से। 9C4। तो अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक्स बोला था, ये को 4C3 तो 4 होता है, क्योंकि NCN-1 एक कम होगा तो N ही होगा। अब इसको तो आपका कोई उपाय नहीं है भाई। 9 पहले ये मैंने से करना, तो एक बार चेक कर लेना। 9 - 5 9 - 4 5 आ रहा है, और ज़्यादा आ रहा है तो फायदा नहीं है। हियर 9 9 8 7 6 4 बार 4 3 2 4 4 6 6 कैंसिल। चलो 9 इंटू आलसी मत नहीं करना है। 9 7 8 56 9 6 54 कैरी 5 9 5 45 एंड 5 50 ना। चलो ठीक है ना, 5 9 5 45 50। चलो नंबर 2, फिर से वही चीज हम तो लिखेगा भाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे। क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट, द वर्ड इज एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, उससे ऊपर 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 जाना है। चलो 3 गर्ल पहले। अब देखो 3 गर्ल लेगा, 4 बॉयज लेगा, या फिर 4 गर्ल लेगा, 3 बॉयज लेगा, या फिर 5 तो है ही तो नहीं, कैसे ले? 4 ही गर्ल अवेलेबल है यहाँ पर, इसलिए इतना ही केस बनेगा। तो अब हम ये सिंप्लीफाई नहीं कर दिया। 3 गर्ल 4C3 कंप्लीट नहीं, इसलिए इंटू 9C4 प्लस ये होगा आपका 4C4 इंटू 9C3। चलो इसका वैल्यू सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास था 504, वही वैल्यू है। 4C4 इज 1, 9C3 इज 9 इंटू 8 इंटू 7 3 बार, और 3 इंटू 2 3 3 कैंसल, 3 4 क्लियर। 3 4 12 12 8 84 हो रहा है, तो 504 प्लस 84, चलो 588। चलो लास्ट क्वेश्चन। ए हे एटमोस्ट। चलो कहानी तो यहाँ आ गया। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, एटमोस्ट एटमोस्ट एटमोस्ट, द वर्ड इज एटमोस्ट। सो अगर एटमोस्ट बोलेगा तो हम लेगा 3 गर्ल 4 बॉयज, घटाना है 2 गर्ल 5 बॉयज, 1 गर्ल 6 बॉयज, 0 गर्ल भी ले सकता है, क्योंकि एटमोस्ट में टिल 0, एटलीस्ट में टिल अवेलेबल, 7 बॉयज, पूरा का पूरा बॉयज। चलो खाली इक्वेशन बना दे रहा। 3 गर्ल्स, अगेन सेम थिंग, 4C3 इंटू 9C4 प्लस 2 गर्ल्स 4C2 इंटू 9C5, 1 गर्ल्स 4C1 इंटू 9C6 प्लस पूरा का पूरा बॉयज 9C7। अब देखो ये ठीक ही है कि 4C3 इंटू 9C4, तो आप लोग कॉमन क्या है ना, ये है ना। चलो इसको वैल्यू नहीं चलना, 504। ये देखो ये कैसे करना है, ध्यान लगा के सुनो। 4C2 क्या होगा, 4 इंटू 3/2 इंटू 1 ना। देखो 9C5 इज सेम एज अ 9C5 इज सेम एज अ 9C4, क्योंकि ये मैंने से करने से जो आएगा उसमें कन्वर्ट कर सकता है। उसका वैल्यू कितना आया था, चलो देखते हैं। अच्छा नहीं किया था, कैसे किया था हम लोग, क्या गया? नहीं यहाँ पर था, ये है ना, ये वाला चीज़। तो देखेगा तो आपको करना पड़ेगा। 9C5 नहीं निकाला है तो उपाय नहीं है भाई। चलो इंटू 9C5 क्या होगा आपका, 9C4 जैसा ही होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6/4 4 3 2। चलो क्या लेना, 4C1 4, 9C6 कन्वर्ट टू 9C3 एंड 9C6 कन्वर्ट टू 9C2, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। तब मेरा रिकमेंडेशन है, आप लोग क्या एग्जाम दे रहा है, क्लास 11, कौन सा, प्रमोशन, है कि नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये लिख देना है, जो जो इजी है ये कर लेना। जैसा इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसको क्वेश्चन के इतना फॉर्मेट लिख के जगह छोड़ के रखना, अदर क्वेश्चन के अटेम्प्ट करते जाना, लास्ट में टाइम मिले करना, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर काटेगा आधा मार्क्स। ठीक है चलो नेक्स्ट, इसी का और वर्जन। एम आई क्लियर? क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से सुन रही। अगर यही चीज़ अगर हम बोर्ड में बोलता, हम आधा मार्क्स के लिए भी हम लोग, क्योंकि हम लोग को चाहिए उधर में 80 खाली, ना कम ना बेसी। चलो यहाँ और here a well-known thinking about the student of a senior secondary school is that they are brilliant, unique in mathematics, blah and blah, बहुत फेंक रहा है भाई, डायरेक्ट यहाँ से आते। he prepared a test consist 12 question divided into 2 part। चलो ठीक है,
12 क्वेश्चन है भाई, 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लियर, जिसमें 5 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है। चलो 12 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल। दैट मीन्स सोचो आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आपके पास 12 क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सेक्शन ए, पार्ट ए में 5 क्वेश्चन, पार्ट बी में 7 क्वेश्चन। आपको 8 क्वेश्चन चुनना है। अटेम्प्ट एनी 8, टक करके एस्ट्रिक मार्क आ गया। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 8 तो करो, पर एटलीस्ट हर एक सेक्शन से 3 तो करना है, बोल दिया। चलो कहानी सुनते हैं अब। पार्ट 1 को मानेगा ए मानेगा, और इसको मानते बी सेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, सुनो। आपको सिलेक्शन कितना है, कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। पहले हम मिले मानेगा ए से 3 क्वेश्चन, बी से 5 क्वेश्चन, या फिर ए से 4 क्वेश्चन, बी से 4 क्वेश्चन, या फिर ए से 5 क्वेश्चन, बी से 3 क्वेश्चन। यस और नो, इसके सिवाय और कुछ कर सकता है? आप बोलेगा सर ए से 6 क्वेश्चन कर लो भाई, ए में पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन है अवेलेबल है। चलो ये हुआ पॉसिबिलिटीज। सो फिर से बात तो है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways of selection of question। चलो इज 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करो भाई, 5C3 इंटू 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करो यहाँ से 7C5 प्लस 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करो वहां से 5C4, इधर से 4 क्वेश्चन 7C4, इधर से सेलेक्ट करो 5 क्वेश्चन, उधर से 5, इधर से 3 7C3। कुछ डाउट है तो बोल दो, नहीं है तो चलो। चलो कैसे करना है पहले ध्यान लगा सुना। जो जो बड़ा नंबर 5 माइनस 3 कितना आ रहा है 2, तो उसमें कन्वर्ट करो। हम लोग सीबीएसई स्टूडेंट ना, तो हम लोग का कैलकुलेटर नहीं है। अगर आईसीसी होता टक 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 करता, खत्म कहानी। क्लियर, चलो 7C5 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 7 माइनस 5 2, छोटा नंबर आ रहा है कन्वर्ट करो। 5C4 तो इसका तो फॉर्मूला भी है, फिर भी 5C1 में कन्वर्ट कर दो। 7 माइनस 4 3 आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, छोटा में कन्वर्ट कर दो। 5C5 तो 1 हो रहा है, नहीं लिखा। 7C3 7 माइनस 3 4, ज़्यादा आ रहा है, नहीं कन्वर्ट करो। चलिए इसको कैलकुलेट अब, 5 इंटू 4 2 बार, 2 इंटू 1, इसको भी 7 इंटू 6, इसको 2 इंटू 1, इसको 5 ही होगा। इसका 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार, इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 3 बार, इसको 3 इंटू 2। चलो काटना है अब धमाधम भाई। 2 2 4 कैंसिल, 3 2 6 3 2 6 कैंसिल, 3 2 6 3 2 6 कैंसिल। तो 5 इंटू 6 30, और 30 इंटू 7 210। यहाँ पर भी वहाँ पर भी वो, तो हम तो 7 7 35 कॉमन लेगा 6। चलो 5 5 25 है कि नहीं, 25 इंटू 7 इज 175, और उधर में 5 इंटू 75 इज 35। कुछ डाउट? चलो सो 210 ना, चलो 200 300 410, 420 जैसा लग रहा है मुझे तो। 100 200 300 400, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, 420 ना। चलो 5 5 10 420, तो 420 वे से सेलेक्ट कर सकता है। तो ये हुआ आप लोग का पढ़ना। आज का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ द क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना, जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला किया। क्लियर, उसके बाद आप लोग का ये इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, कार्ड से क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा। ये वाला क्वेश्चन फिर भी शायद नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका दूसरा क्वाड्रेंट का एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी दे सकता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन अगर आप लोग के पास है तो देगा। इसका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये मुझे नहीं लगता, अगर देने से 2 मार्क्स में देगा। क्लियर, ये तो वही था क्वेश्चन आपका, चलो बोल दे रहे। ये भी फिर भी लॉजिकल है, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं देगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसी का बात कर रहा था, इसी में से बहुत सारा चीज़ क्या है। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इंस्टीड ऑफ इमेज भी, इमेज प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन फिक्स है, ये लोग देगा, या फिर ये वाला क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में मिलेगा। इसे एमसीक्यू पता है ना, एन था ना, ये पावर एन प्लस है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक्स भी दिया था, और नॉर्मल रिवीजन चैप्टर वाइज में भी कराया था। इस तरह का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा एक तो, कुछ भी एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी में 100% मिलेगा एक क्वेश्चन। डोमेन एंड रेंज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस जस्ट द अपोजिट वन डियर, अपोजिट वन, x² - 1b 9b,
ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है देगा। क्लियर? ये हुआ आपका क्वेश्चन का एनालिसिस। क्लियर? तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा ही परफेक्ट जो जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, पर हम जो आगे में पढ़ा है उसको तो देखना ही है, याद करना है। यहाँ से हम लोग को क्विक कर रहे हैं। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।